This video is all about K Beauty Soft Matte Foundation. It's their newly launched costing 1499 rupees. I'm gonna talk in detail कि क्या ये foundation worth it है या नहीं. So without a further delay, let's get started. एवरीबडी थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग दिस वीडियो. ये फाउंडेशन ना मैंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था, बट इस बार नायका ने इसे डिलीवर करने में लेट कर दी है, मे बी बिकॉज ऑफ होली. तो आज ना मैं इस वीडियो का फॉर्मेट इस तरीके से रखूंगी कि 9 आवर टेस्ट मैं इस पर कर चुकी हूँ. तो अब आपकी स्क्रीन पे एक विंडो पॉपअप होगी जिसमें मैं आपको सारी एप्लीकेशन इस फाउंडेशन की दिखाऊंगी. एक तरफ मैंने ब्रश से अप्लाई किया है और एक तरफ आई हैव अप्लाइड इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर. सो यू आर गोना सी फुल मेकअप यूजिंग ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ K Beauty while I'm talking about the things that this foundation has come up with. So let's talk in detail about the foundation, and after I'm gonna show you the full comparison between the hydrating foundation and the soft matte full coverage foundation. Okay, so the company claims that it is a soft matte full coverage foundation with SPF 30. और ना ये फाउंडेशन आया है टोटल 16 शेड्स में. इसकी प्राइसिंग है 1499 रुपीज. सबसे पहले अगर मैं सॉफ्ट मैट फाउंडेशन लगाना चाहती हूँ तो मुझे हाइड्रेट करने की अपने फेस को बहुत ज़रूरत होती है बिकॉज मेरी स्किन ड्राई है. तो राइट नाउ आई एम ऑल्सो हाइड्रेटिंग माई स्किन ऑन बोथ द साइड्स. और इस वीडियो में मैंने अच्छे से अपने फेस को हाइड्रेट किया था. ऑल्सो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सो दैट इफ आई एम अप्लाइंग अ मैट फाउंडेशन it should not have breakages. Now, why it is the right time to launch this type of foundation? Because summers are approaching in India and we tend to become a little bit of oily and we need some sort of a matte foundation. हालांकि इसके डिस्क्रिप्शन पे अगर आप चेक करोगे तो नॉर्मल स्किन के लिए ये लिखा है, बट द फाउंडेशन इज एक्चुअली फुल कवरेज. एंड आई फील कि थोड़ी बहुत ऑयली स्किन अगर किसी की होगी ना, उसकी स्किन पे तो ये काफ़ी अच्छा चलेगा. वेयर एज फॉर पीपल लाइक मी विद ड्राई स्किन बड़ा मुश्किल है. बहुत सारा हाइड्रेशन देना पड़ता है फेस को, तब ऐसे फाउंडेशन परफॉर्म करते हैं. वेयर एज इफ आई एम गोइंग टू अ सर्टेन पार्टी, I think I would like to use this because I'm gonna sweat a lot and matte foundations takes care of it. So I've used a lot of Fix Plus in the video as well because it gives me a lot of hydration. तो मेरे पास अल्ट्रा हाइड्रेटिंग फाउंडेशन का ना शेड था 125Y जो थोड़ा सा डार्क लगता था. सो आई ऑर्डर्ड 120Y दिस टाइम. ओके, एंड दिस इज as per the company this is a light shade, this is not a medium shade. Okay, so this is 120Y and ultra hydrating का shade मेरे पास था 125Y. now you can clearly see it is little dark. Okay, now let's just do a full swatch. see, हालांकि ये मेरे नेक में जाके एकदम अच्छी तरीके से ब्लेंड हो रहा है, बट this looks much better on my skin considering the fact कि ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है. कितना ऑक्सीडाइज होता है अभी बताती हूँ. तो इस पूरी मेकअप लुक में मैंने फुल कलर करेक्शन भी की है और फिर फाउंडेशन अप्लाई किया है. वेयर एज राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू any color correction and I'll just apply both the foundations just like that. Now we are going to see how this foundation performs right now on my skin, or फिर in the end we are going to talk about how it performed during the day. So I'm gonna just take the hydrating foundation on the back of my hand and I'll just apply a little bit of dot on my left side of the face. And I'm gonna take a new beauty blender each time I'm gonna apply it. Okay, so this is a damp beauty blender. We will build coverage little by little. कल इस फाउंडेशन को मैंने फुल ऑन लगाया था फॉर अ ग्लैम लुक. आज मैं इसे लिटिल बाय लिटिल अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी. आप अगर फाउंडेशन थोड़ा लगाना पसंद करते हो देन ऑल्सो why you should opt it, and if you are a person who likes a lot of glam then should you be going ahead with this or not. Okay, so this is just one application, very little, like an everyday application for the hydrating foundation. Now I'm gonna take the soft matte foundation
and I've taken 2 pumps here. Good thing is the foundation comes with a pump, which means lesser wastage. And look at this. Now you can see my pigmented areas and everything over here. I'm just gonna start applying this one. You can see the shade difference as well. तो कल ना मैंने इसे सिर्फ कलर करेक्शन की थी एंड वट एवर वॉज लेफ्ट ऑन माई ब्यूटी ब्लेंडर मैंने इसे अपनी अंडर आइज पे भी लगा लिया था बिकॉज इट वॉज सो फुल कवरेज आई डिडंट need any other concealer. This is the soft matte full coverage foundation and this is hydrating one. Let's just put it on the pigmented area, only on the cheek. Whenever you apply any matte foundation, you don't need a lot of powder. You can always work with a little bit of powder on the T-zone and under eyes, and on the rest of the face you can use very little compact or very little powder on the full face, not a lot of powder. Self setting होते हैं matte foundation, तो ये अच्छी तरीके से आपके फेस पे सेट हो जाते हैं और मूव नहीं करते. दिस मच फाउंडेशन इज लेफ्ट. सो देर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ वेरी थिन फाउंडेशन एंड अ थिक फाउंडेशन. जब भी आपका फुल कवरेज फाउंडेशन होगा ना, वो आपको नॉर्मली हम इतनी दूर से अपना फेस देखते हैं मिरर में, तो आपको दूर से वो पता चलेगा दैट यू हैव अप्लाइड अ फाउंडेशन. Whereas hydrating foundation doesn't looks that much layered up when you apply the foundation. अब मैंने आपके सामने फाउंडेशन लगाया है, ना कोई कलर करेक्टर और एनीथिंग एल्स, बट स्टिल I can feel the foundation kind of feeling over here, but here I feel very natural. Whereas natural की जो definition है ना, वो different होती है हर एक इंसान के लिए. किसी के लिए ये नेचुरल है अगर उन्हें कवरेज चाहिए और बहुत ज़्यादा केकीनेस नहीं चाहिए. किसी के लिए ये नेचुरल है अगर आप एवरीडे में लगाना चाहते हो तो ये नेचुरल लगेगा. अगर आप ग्लैम में लगाना चाहते हो तो ये नेचुरल लगेगा. फाउंडेशन आपकी स्किन टाइप पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप एक ऑयली स्किन टाइप के हो तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा आपके फेस पे, वेयर एज नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वाले लोगों के साथ ये वाला अच्छा परफॉर्म करेगा. फाउंडेशन के अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज द फाउंडेशन कैन इरिटेट द सेंसिटिव स्किन. ये मेकअप के बेसिक्स ना मैं अपनी रेगुलर मेकअप बेसिक्स वीडियोस भी डाल रही हूँ, उसमें भी बता रही हूँ, सो यू कैन गो चेक आउट दोज वीडियोज एज वेल. Otherwise, these are basic rules of a foundation that we are discussing over here. After 10 minutes, I'm gonna do the tissue test. There is barely anything here. Very less for the hydrating one, but matte foundation, only a hue of color, nothing at all, okay? Compact powder, I'm using the Charlotte Tilbury one. The video that I have shown you, I set it with the loose powder. So I've completed my makeup now. और अब बात कर लेते हैं फाउंडेशन के बारे में. So इस फाउंडेशन को मैंने कल लगाया था अपने फेस पे और फुल डे वेयर टेस्ट करा था. आई न्यू कि मैं एक मैट फाउंडेशन लगाने वाली हूँ, तो मैंने मॉइस्चराइज अपने फेस को अच्छे से करा था. तो फाउंडेशन ना सिर्फ और सिर्फ मेरी यहाँ पे लाइंस पड़ती हैं. इफ़ यू सी, यहाँ पे मुझे ड्राइनेस फील हो रही थी कल भी इस फाउंडेशन को लगाने के लिए नेचुरली, बिकॉज मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है. तो अगर हम बात करें कि आपकी स्किन अगर ड्राई है, सेंसिटिव है या नॉर्मल है, मुझे लगता है कि आप हाइड्रेटिंग फाउंडेशन भी खरीद सकते हो अगर आप एवरीडे फाउंडेशन ढूंढ रहे हो. अगर आप एक पार्टी मेकअप ढूंढ रहे हो, समर्स का टाइम है और अगर आप स्वेट करते हो, समर्स में बाहर जाते हो, सन में बाहर जाते हो, तब आप इस फाउंडेशन में इन्वेस्ट कर सकते हो. ये रही बात स्किन टाइप के हिसाब से. प्राइसिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये फाउंडेशन आता है 1499 रुपीज़ का और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन आता है 1299 रुपीज़ का. सो राइट नाउ इट्स समर टाइम. कंपनी नोज दैट समर टाइम में हमें सबको एक मैट फाउंडेशन चाहिए होता है. तो 1499 आई वोंट से इज अ वेरी हाई प्राइस. इट्स अ डिसेंट प्राइस. फॉर दैट the foundation's quality is okay. Now next, if you will ask me how did the foundation perform during the day, first as per the skin shade I feel ये foundation मेरे लिए
एक टोन या हाफ टोन लाइट है, तो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट फाउंडेशन में 125 जो शेड था वो मुझे लगता है मेरी स्किन टोन के लिए थोड़ा सा डार्क था, तो इसीलिए मुझे उसके ऊपर कंसीलर लगाने की जरूरत पड़ती है टू अपलिफ्ट माय शेड अ लिटिल। ओके, इसमें मुझे ज़्यादा कवरेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी टू अपलिफ्ट माय शेड, क्योंकि ये ऑलरेडी एक फुल कवरेज फाउंडेशन है। अच्छी तरीके से ये मेरे पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स को कवर कर लेता है। इनफैक्ट मैंने थोड़ी सी कलर करेक्शन की थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई और कंसीलिंग या हाईलाइटिंग कंसीलर का शेड नहीं लगाया है। द फाउंडेशन फोटोग्राफ्स रियली वेल। आफ्टर 3 आवर्स मैंने इस फाउंडेशन को देखा था, तो फोटोज में और वीडियोस में ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो फाउंडेशन की फीलिंग आपको ज़रूर आएगी कि आपने लगाया हुआ है। अगर आप इसे थोड़ा थिन करना चाहते हो तो लेयर थोड़ी पतली लगा लेना, लेकिन लेयर पतली लगाने से कवरेज भी कम हो जाती है, राइट। शेड की बात करें तो इस फाउंडेशन में 16 शेड्स आए हैं, वेयर एज हाइड्रेटिंग फाउंडेशन में हमारे पास 20 शेड्स थे। फाइनली आफ्टर वेयर टेस्ट ऑफ 9 आवर्स व्हाट हैपेंड वाज, टी जोन तो मेरा 3 या 4 घंटे के अंदर ही ऑयली हो गया था, बट मेरा फुल फेस ऑयली आफ्टर 9 आवर्स लग रहा था। वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने इसे एक साइड पे पाउडर किया अच्छी तरीके से, और उसके बाद मेरी ऑयली फीलिंग फेस से चली गई थी। तो मैट फाउंडेशन होते हुए भी आपको इसमें टचअप्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपके फेस पे ऑयल आता है तो। अदरवाइज फाउंडेशन वॉज गुड। अंडर आईज पे मुझे लग रहा था कि हल्की सी क्रीजिंग हो रही थी, क्योंकि ये हैवी कवरेज फाउंडेशन है। तो अगर आपके लाफिंग लाइंस हैं, अंडर आई एरियाज हैं, वहाँ पे हल्के हल्के रिंकल्स, हल्की हल्की क्रोज फीट में मुझे क्रीजिंग पता चल रही थी। टचअप के बाद फाउंडेशन वैसे ही रिफ्रेश हो गया था, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट अगर आप एक फुल कवरेज फाउंडेशन पे फाउंडेशन अप्लाई करते वक्त ही बहुत सारा पाउडरिंग कर लोगे, क्योंकि जनरली हम जब पार्टी में जाते हैं हमें पता होता है वी आर गोइंग टू स्वेट, वी पाउडर अ लॉट। बट अगर एक फुल कवरेज फाउंडेशन के साथ आप उसी वक्त पाउडरिंग कर लोगे तो वो हैवी, केकी और चौकी लग सकता है, अनलेस यू हैव वेरी ऑयली स्किन। तो क्या आपको इस फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं बोलूँगी कि आपके ब्यूटी के हाइड्रेटिंग फाउंडेशन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, राइट। अगर आप एक एवरीडे या पार्टी मेकअप ढूंढ रहे हो एट एन अफोर्डेबल प्राइस। लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तब आप के ब्यूटी के सॉफ्ट मैट फाउंडेशन को ले सकते हो, या फिर अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो इन समर्स फॉर 3 to 4 आवर्स यू कैन अप्लाई इट। गुड पॉइंट इज कि इसके अंदर SPF 30 है, लेकिन ये मत सोचना कि दिन में आप किसी फंक्शन में जा सकते हो बिना सनस्क्रीन अप्लाई किए। इसके साथ भी आपको सनस्क्रीन लगानी पड़ेगी। हालांकि ये फाउंडेशन थोड़ी सी सनस्क्रीन के साथ आता है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अस अगर हम अपनी सनस्क्रीन कैरी करना भूल गए हैं। इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात भी आपसे करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जिसमें मैं आपको सारी डिटेल्स भेज रही हूँ, जिस तरीके की मैं वीडियोस बनाती हूँ। जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ, मेरी वैनिटी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और कौन से प्रोडक्ट रिव्यूज़ मैं डालने वाली हूँ, आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। और मैं एक मेकअप बेसिक्स पे वर्कशॉप करने वाली हूँ, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन ज्वाइन दैट वर्कशॉप एज वेल ऑन 29th of March। उसका लिंक भी आपको इस कम्युनिटी में और मेरे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अनस्पॉन्सर्ड है, मैंने इसमें कोई भी तरीके की तारीफें नहीं करी हैं प्रोडक्ट की। जो मुझे लगा, जैसा प्रोडक्ट ने मुझ पे परफॉर्म किया, मैंने आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करे हैं, उसके लिए एक लाइक तो बनता है। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। के बाय कटरीना इज अ वेरी गुड ब्रांड, दे हैव वेरी गुड प्रोडक्ट्स and initiatives taken by the brand are really nice, but I believe that every product has a certain capability, वो किस स्किन पे परफॉर्म करेगा या किस पे नहीं। सॉफ्ट मैट मेरे लिए नहीं है, बट हाइड्रेटिंग मेरे लिए ज़रूर है। अब आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा लेना है और कमेंट्स में मुझे बताना। बाय बाय।